Himani, I'm waiting for your reply. Everybody, every student is requested to switch their cameras on. Nowadays, you people have become very, very techno-friendly. Switch on your cameras. I want to see you all. That's why I'm conducting the class in Google Classroom. Switch on your cameras. Okay. So in that story, Himani is unable to answer. In that story, we came to know about a man named Rip Van Winkle. His name was, sorry, I have not written it on the board today. The name of the man was Rip Van Winkle. He lived at the foothills of the Catskill Mountain. He was a good neighbor, kind neighbor. He was liked by the children of the village because he played with them. He shoot marbles with them. He told them long stories. He just flew kites with them. Okay, but the only problem with Rip was that he was a lazy fellow. He did not work on his farm. He did not take care of his cow, and he always just roam here and there to just stay out of the work. So nobody should tell him any work. So he had a dog, and the dog's name was Wolf. So he just used to roam in the hills with Wolf. And one day when he just went to the hills, somebody called him, and some old fellow with a grizzled beard called him for help. Rip helped him, and he offered him some drink. Rip drank it, and then Rip slept for 20 years. After 20 years, when he woke up, he didn't know that he slept for 20 years. When he woke up, he just returned to his village. When he returned to his village, people could not recognize him. Even he could not recognize the people also. But one old neighbor recognized Rip, and she asked him, "Where were you these last 20 years?" It means then Rip came to know that I have returned to my village after 20 years. Okay, so that was the main story. And through this story, we have learned that we should not be lazy. Okay, we should never be lazy. We should do all our work in time, and we should take care of our possessions. Whatever things are ours, we should take care. Is that clear? Okay, so now I am starting the new words. I will write, you take your notebook out, write Unit 5, Lesson 5, new words and today's date. Don't forget to write the date. Okay? And write it. First one is good-natured. Rip was a good-natured man. Good-natured. Awaken. Catskill. It's the name of a mountain. Catskill. Fellow. Follow. Idled. ऐसे ही आलसी तरह घूमना. Fence. Yesterday I draw also. कल मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था फेंस. Astray. When animals are not being taken care of, they roam here and there. Astray. Abhiraj, am I audible? Am I audible, Abhiraj? Okay. Ashi? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. You can see the board clearly? Yes, ma'am. I can see the board clearly. Okay, write it now. Constant, continuous. Constant means continuous. Constant.
कंपेनियन, कंपेनियन मीन साथी, जो आपके साथ रहता है हमेशा. वुल्फ वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन. डे ड्रीमिंग, yesterday I told you the meaning of this word. Daydreaming, daydreaming. Grizzled, their beards were grizzled, grizzled. Descend, I also told you the meaning of descend. Descending and ascending order that you do in math. Wrinkled, W-R-I-N-K-L-E-D, wrinkled. And last word, astonished. Astonished means greatly surprised. These are the new words. I have finished. I am giving you 2 to 3 minutes to write them down. Everybody write them. Ma'am, side please. Yeah. 3 minutes I am giving you to note this down. After these, we will do the meanings. Nicely with good handwriting, and when you are writing, just speak the spelling, just tell the spelling in your mind. डे ड्रीमिंग के बाद हिमानी, डे ड्रीमिंग के बाद बेटा लिखा है ग्रिजल्ड. ओके हिमानी, हिमानी मीणा, डे ड्रीमिंग के बाद लिखा है ग्रिजल्ड, ग्रिजल्ड बियर्ड. Okay, ma'am. Three times you are supposed to write these words. Right now you can write one time, but later on you have to write 3 times in total, and you have to learn the spellings also. That's why we do this. ये मतलब नहीं कि कॉपी भरनी है, मैडम ने कह दिया कॉपी में लिख रहे हैं बात खत्म, ऐसे नहीं होता है. मैं when I am giving you these words are to be written in your notebook, as well as you have to learn these words. ये स्पेलिंग आपको याद करनी है, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तब तो मजा है. एस्टोनिश का मीनिंग मैं बता चुकी थी कल जब क्लास चल रही थी तब. स्टिल वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, एस्टोनिश का मतलब ग्रेटली सरप्राइज्ड, ग्रेटली सरप्राइज्ड. Two more minutes for those who write slowly. 2 more minutes for those who write slowly. मीनिंग्स अभी करेंगे. डोंट आस्क मी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स राइट नाउ. अभी मीनिंग्स कर लेंगे, उसके बाद अगर कुछ बचता है, आफ्टर दैट इफ एनीथिंग इज लेफ्ट यू कैन आस्क मी. वेट फॉर द मीनिंग. One minute only, last 1 minute, and then I will rub the board. वेरी गुड मयंक, राइटिंग अच्छी लिखना बेटा. मयंक राइटिंग अच्छी लिखना, अच्छी राइटिंग में करना.
Done, ma'am. जतिन माइक ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है डन मैम बोलने के लिए. Okay, now I'm rubbing the board as everybody, many of the messages I have got, completed ma'am, completed ma'am. So new words over, total, how many new words you have written? 15. 1, 5, 15. Many are there, but जो बिल्कुल खास खास जरूरी थे वो हमने लिखे हैं न्यू वर्ड्स. आप और भी बुक में से जब रीडिंग करोगे यू कैन लर्न. ये वर्ड्स आपके लिए न्यू थे, मुझे न्यू लगे तो मैंने आपको लिखवा दिए. नाउ वी विल डू द meanings on a new page. On a new page, write the heading meaning. Meanings लिखो and we will do the meanings. ऊपर heading डाल दो meanings. First word is fellow. मैंने आपको कल बताया भी था, yesterday also I told you. Fellow means a person. कोई भी एक इंसान. He is a good fellow. Person. Fellow means a person. Astray. She was roaming astray. Astray का मतलब होता है uselessly. फालतू में, बिना काम के घूमना इधर उधर. Uselessly. नंबर 3 पे है weeds. Yesterday also I showed you. Weeds. Wild plants. Unwanted plants भी बोल सकते हो. Wild plants जो किसी काम के ना हो. Next, grizzled. Grizzled जो अभी न्यू वर्ड में भी लिखवाया. Grizzled means gray haired. ग्रे हेयर मतलब ग्रे का मतलब यहाँ पे ग्रे कलर नहीं है, सफेद. ग्रे हेयर बोलते हैं इंग्लिश में सफेद को, सफेद दाढ़ी. एस्टोनिशमेंट. ग्रेट सरप्राइज. जब बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाए उसको बोलते हैं एस्टोनिशमेंट. नेक्स्ट नंबर 6. इकोड. रिपीटेशन ऑफ साउंड्स. रिपीटेशन मतलब अपनी आवाज बार बार सुनाई देनी. जैसे पहाड़ों में मैंने आपको बताया था कि बोलते हैं, मैंने आवाज दी सर तो आएगा सर 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 सर. मेरी एक बार बोलूंगी लेकिन मेरी आवाज 3-4 बार सुनाई देगी. दैट इज कॉल्ड आवाज इको होना. इको होना का मतलब बार बार रिपीटेशन होना उसका. आपको बार बार सुनाई देगी. ये खाली जगहों में ज्यादा होता है जहां से आवाज टकरा के वापस आ जाती है. थंडर. अ लाउड डीप नॉइज. एक बहुत धमाकेदार जोरदार आवाज, बैंगिंग आवाज. जैसे आप बोल सकते हो जब बादल गरजते हैं तो थंडर बोलते हैं. गड़गड़ गड़गड़ एकदम से हम लोग डर भी जाते हैं घर में, तो उसको बोलते हैं थंडर. थंडरिंग हो रही है. So 7 meanings are written on the board. I am giving you 2 to 3 minutes to note them down. Then I will rub the board. Then I will write the next meanings. 7 meanings are written on the board. इनको कर लीजिए. 3 minutes I am giving you to complete. मैम फरमाइए. मैम आई हैव अ डाउट. हाँ बोलो, डाउट बोलो. मैम मेरा एक फ्रेंड है अनय, वो भी एसीएस में ही पढ़ता है, एसएस3 में. उसकी मदर मुझे बोल रही थी कि स्कूल छोटे बच्चों के एक दिन छोड़ के चलने वाले, तो क्या ये सच है? छोटे बच्चे मतलब कितने छोटे बच्चे हैं? मैम मतलब 3rd to 5th. नहीं नहीं, सच नहीं है. थैंक यू मैम.
Many students have sent me the Google Classroom assignment. कईयों ने भेज दिया, 27-28 बच्चों ने, और टोटल दोनों क्लासेस में मिला के 61 बच्चे हैं। कई बच्चों का मेरे पास अभी भी नहीं आया। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, आई सेंड यू वेरी लिमिटेड वर्क। मुझे पता है कि आपको दूसरे सब्जेक्ट का काम भी करना होता है। यू हैव टू डू मैथ्स, यू हैव टू डू ईवीएस, यू हैव टू डू हिंदी एंड इंग्लिश, माई सब्जेक्ट। सो मुझे पता है, लेकिन मैं कम काम दे रही हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग मुझे गूगल क्लासरूम में काम करके नहीं भेज रहे हो, तो फिर मैं आपके मार्क्स काटूंगी। असाइनमेंट के आपको जो मार्क्स मिलते हैं उसमें से मैं आपके मार्क्स काट लूंगी। तो आज जिन भी बच्चों ने असाइनमेंट नहीं भेजा है, 5 मिनट का असाइनमेंट देती हूँ मैं, हार्डली 5-7 मिनट का। आप फटाफट आराम से बैठ के लिख सकते हो और फोटो खींचो, पीडीएफ बनाओ और मुझे भेज दो। इतना आसान है। तो आज की डेट मैंने दे रखी है 18 की। जिन बच्चों ने अभी तक मुझे गूगल क्लासरूम असाइनमेंट नहीं भेजा है, जो मैंने कल परसों दिया था, तो वो मुझे आज भेज देंगे। Last 1 minute and then I will rub the board. I will write some more meanings. 7 meanings I have already given you. A fellow, a person, astray uselessly, weeds wild plants, grizzled gray-haired, astonishment, great surprise, echoed, a repetition, भूल गई मैं, sorry, a repetition of sound. echo क्या क्या आप लिख दीजिए, a repetition of sound. A repetition of sound. Those who have already written, please write it. A repetition of sounds. अपनी ही आवाज बार बार सुनाई देना. And the last one is thunder, a loud deep noise. मैम ये बुक में है क्या? बुक में होते तो वंशिका मैं बोर्ड पे क्यों लिखवाती तुम्हें? Now I am rubbing the board. I will write some more meanings. 7 हमारे हो चुके हैं. Now some more meanings I will write and you will copy them in your notebook. Number 8. Wrinkled. अभी किसी ने पूछा भी था, मैडम wrinkled क्या होता है? Wrinkled. SLIGHT, स्लाइट मतलब थोड़ा सा. A slight line or fold in a slight line or fold in a fabric. wrinkle fabric में भी हो सकता है, और स्किन पे भी रिंकल पड़ जाते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी चमड़ी जो है वो लटक जाती है, अलग अलग रिंकल्स पड़ जाते हैं. फिर भी स्टिल somebody was asking me, मैडम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिंकल. मैंने आपको बकायदा पूरा लेसन पढ़ाते हुए एग्जांपल दिया था. नंबर 9, डे ड्रीमिंग. Daydreaming. A series of pleasant का मतलब जो हमें खुश करते हैं. A series of pleasant thoughts आप सोचते जा रहे हो मेरे साथ, जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी, एक आदमी सोचता है मेरे को इतने पैसे मिल गए, अब आज तो मैं जाके इसकी एक गाय खरीदूंगा, गाय बहुत दूध देगी, उस दूध का मैं दही जमाऊंगा, दही जमा के मैं उसका मक्खन निकालूंगा, चाट बनाऊंगा, उससे बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, फिर मैं शादी करूंगा. ऐसे वो डे ड्रीमिंग सोचता जा रहा है, आगे से आगे. हुआ कुछ भी नहीं अभी, ओनली ही इज थिंकिंग. So these things are called a series of pleasant thoughts that distract your attention. That distract, जो आपका अटेंशन भटकाता है, योर अटेंशन. आप कुछ सोचने लग जाओगे, फिर आपका दिमाग जो आप काम कर रहे हो उसमें चलेगा ही नहीं. उसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग.
Number 10. Idled away. Wasted. Idled away का मतलब वेस्ट करना, फालतू इधर उधर घूमना, वेस्टेड. कांस्टेंट मतलब हमेशा साथ रहने वाला है. स्टडी. कांस्टेंट का मतलब स्टडी. स्टडी नहीं, स्टडी. STEADY. Number 12. कंपेनियन. पार्टनर, आपका साथ, जो आपके साथ ही रहता है, जो हमारा पक्का कोई दोस्त होता है. पार्टनर. एक और स्पेस है तो एक और लिख देती हूँ यहाँ पे, फिर नेक्स्ट उसमें लिखेंगे. रियलाइज. आई रियलाइज माई मिस्टेक, है ना. रियलाइज का मतलब टू अंडरस्टैंड, कि हाँ भाई मुझे समझ में आ गया. टू अंडरस्टैंड. इतना लिखिए. 13 till 13 I have written now. Some more few meanings are also there. वो मैं इसके बाद लिखती हूँ. Again I am giving you 3 to 4 minutes. कर लीजिए इसको. डन. Yes, last 2 minutes. 2 more minutes for those who have not noted down. Please note these words down. Wrinkle. Wrinkle का मतलब a slight line or fold in a fabric or skin. Wrinkle कहीं भी हो सकता है. कपड़े में भी हो सकता है wrinkle. जब जैसे हम कपड़ों को जो प्रेस नहीं करते तो वो wrinkle wrinkle हो जाते हैं पूरे, है ना. और फेस के ऊपर भी wrinkle पड़ जाते हैं. स्पेशली ज्यादातर wrinkles होते हैं बुढ़े लोगों को. उनकी स्किन की जो कसाव है वो कम हो जाता है. डे ड्रीमिंग मतलब दिन में सपने देखना. आ सीरीज ऑफ प्लेजेंट थॉट्स दैट डिस्ट्रैक्ट योर अटेंशन. आइडल्ड अवे, वेस्टेड. कांस्टेंट, स्टेडी. कंपेनियन, पार्टनर. रियलाइज, टू अंडरस्टैंड. ओके. आदर्श का बोला था मैंने किसी को पता करने को. आदर्श का कोई पता कर सकता है? उसका फोन भी नहीं लग रहा है. तो उसको बोलो क्लास अटेंड कर भैया, नहीं तो फेल हो जाएगा तू.
Yes. I'm rubbing the board now. Again, meaning here written. Some more 4, 5, 6 meanings are there. करेंगे और फिर हमारा meaning का पार्ट होगा. तो आप ये things are second something. तो फिर आप सबसे जब तक आप वर्ड फिल्मिंग नहीं आएंगे आप अच्छे से नहीं कर पाओगे. कोई नंबर डिस्टेंस डिस्टेंस का मतलब मूव डाउन मैंने आपको बोल के दिखाया था 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 to move down बहुत नीचे करना. देखिए बैरल बैरल का मतलब मैंने आपको बहुत दिखाया था. abundant container लकड़ी का बना हुआ एक कंटेनर होता है और ज्यादा से पैर होते हैं इसलिए वो लकड़ी को खुद के बनते हैं. लेकिन आयरन ग्लास कम होता है. कंटेंट 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 का मतलब है ड्राइंग मटेरियल सेकंड में लगेगी. जैसे आपको मतलब बता दिए खाली सब्जी में मसाले भी डालती है दाल डालती है और उसके अंदर या दो सारे क्या होते हैं सारे इंग्रेडिएंट. ये बड़े बच्चे की खाना स्टेप देखते रहना स्टाफ में स्टेप ऐसे ऐसे देखते रहना तो बोलते हैं ये फैमिलियर फैमिली का मतलब ग्रुप आप जानते हैं. नोन टू डू आपके पहचान रहा. स्ट्रेंजर और प्रॉब्लम जानते थे स्ट्रेंजर और जानना जैसे इसको किसी स्ट्रेंजर ने आवाज दी लेकिन जो गांव के बच्चे थे विलेज के वो उसके फैमिलियर थे वो स्ट्रेंजर नहीं थे. तो जनरल टू नॉट जनरल जैसे आपका मुझे चैट है तो आप इसको कर रहे हो ओके है ना आप उसको बोलते हैं. एंड लास्ट ऑफ द डे इज उनके बताना near the lower part of a mountain. Near the lower part of a mountain. Okay, so students, in all I have written the 20 meaning और मैंने इसमें जो है कवर अप ये भी कवर अप कर लिया. बच्चे ने मुझे पूछा था मैडम बुक में है क्या उस समय जो मैं लिखवा रही थी वो बुक के नहीं थे. That time I was not giving it from the book. मैं दे रही हूँ आपको अभी जो मैंने किया है
ये मैंने आपको ये सारी एक्सरसाइज, ये वाला पेज पूरा ऑलमोस्ट ट्रू फॉल्स को छोड़ के मैंने ये ऊपर फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में से भी आपको सारे मीनिंग लिखवा दिए। तो इन ऑल हमारे हो गए 20 मीनिंग, 20 मीनिंग हो गए और ये सारे आपको लर्न करने हैं अच्छे से। 3 मिनट, लास्ट 3 मिनट, मूव डाउन, डिस्टेंस, मूव डाउन। डिस्टेंस का मतलब पीछे करना, बैलेंस, उधर कंटेनर, इसका बना हुआ कंटेनर, कंटेंट, द इंग्रेडिएंट्स, किस मसाले या दूध डालते हैं, डेट, स्टेयर एट, तब तक लगा के देखना, फेमिलियर, नोन टू यू, तो आपके नोन हो, और फ्लो, रब जेंटली, प्यार से ऊपर से जेंटली रब करना, और पुट इट नियर द लोअर पार्ट। मैम पार्ट है मैम, लोअर फिर पार्ट के बाद क्या लिखा है? lower part of cell. आप गौरव लीव कर सकते हो, लेकिन जल्दी भी क्या है, कहीं जाना है क्या शादी पार्टी में? वन मिनट, लास्ट 1 मिनट, and I will end the class also. आज का हमारी क्लास में हमने किया मेनली फर्स्ट एंड मीनिंग। टुमारो करेंगे the क्वेश्चन आंसर and other exercise of lesson number 5. Ma'am, I have done. I can leave the meeting. No, you cannot for us. मैंने बोला भी, आपने पूछा, आपने टाइप करके नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कि आपको कहीं जाना है क्या गौरव, कहीं जाना है पार्टी वार्टी में, तो बस बैठो, पढ़ो बैठ के, पढ़ लो बैठ के इसको। 1 मिनट की बात है, 1 मिनट आई एम एंडिंग द क्लास। Okay, so that's all for today. In today's class, we did 15 first new words, 15 new words that you have learned the spelling. You have to write them in 3 times in your notebook. Then after later on, we did 20 meanings. I think सबसे ज़्यादा meaning इसी lesson के होंगे, right? 20 meanings हमने शायद इस lesson के नहीं किया तक। तो इसके सबसे ज़्यादा meaning से इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, कि आपको meaning पता होंगे तो you can write very nicely in your exam also. Okay? So that's all for today. Thank you, ma'am, for teaching us. Bye, ma'am, and